What is financial planning? Your 6 months of salary has to go in your emergency fund. Young people of India, they should be planning for their retirement right now. How is the financial planning is important for women? कम से कम हमारे पास 2-3 इनकम स्ट्रीम्स होनी चाहिए. सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट is coming from Eastern India. Trading and all, I would strongly advise never get into it. SIPs, that systematic investment plans. So is it a good option for women? SIP is a Women को कैसे encourage कर सकते हैं investment के लिए? once you have invested and your money has grown, then spend. One financial habit you personally follow? 30 to 40% save. Invest. Hello and welcome to Live with Monica podcast. So in today's episode, we have a guest today. She's someone like who helps people to manage their money in a better and a plan for the future, savings, investment and building a secure life. She has years of experience in financial planning. She's a certified financial expert and a mutual fund distributor. We just welcome Rani Ahluwalia, ma'am. Hello, ma'am. Welcome to the podcast. Hello, How are you, ma'am? I am doing well. So, ma'am, you're a financial expert, like a so your whole experience is into like this financial field, like the whole career and everything. First of all, I want to thank you for inviting me, and it is such a big pleasure. Thank you so much. And wonderful knowing you also. Yeah. Yeah. So, yes, I am a financial consultant, Okay. and I have more than 15 years of experience in handling finances. Okay. And I am a certified financial planner, and my certification is recognized all over the world. Okay. And my degree is from FPSB, Financial Planning Standards Board, Okay. which is headquartered in US. Okay. That's But nice. we have in India wide their office also, which Okay. is FPSB India. So Okay. that's the one holding this examination in India. So Okay. now in India, we are around 3,000 certified financial planners in our country also, Okay. and more increasing more. Of course, And in you are the- doing like offline also and online also, right? yeah, yes, of course. Okay. Yeah. So, मैम लाइक व्हाट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक हमें यही जानना ज़रूरी है कि फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है, बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत बेसिक्स भी लोगों को नहीं पता है. एंड इफ वी टॉक अबाउट वुमेन स्पेशली इन इंडिया, सो वुमेन्स को तो बहुत लैक ऑफ नॉलेज है अबाउट फाइनेंस एंड ऑल. सो लाइक जस्ट स्टार्ट फ्रॉम व्हाट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग. या ओके, बिल्कुल बेसिक अगर आप पूछें तो फाइनेंशियल प्लानिंग है. लाइक प्लानिंग को हम क्या बोलते हैं? योजना बनानी. एग्जैक्टली. हिंदी में हम यही कहते हैं, योजना हाँ जी, बनानी. हाँ जी. तो फाइनेंशियल प्लानिंग जब हम बोलते हैं तो वो एक ऐसा फील्ड है जो हमारे इंडिया में अभी लोगों को पता नहीं है इसके बारे में. इसमें क्या होता है कि हम अपनी फाइनेंसेस, अपने जो पैसे हैं उनकी प्लानिंग करते हैं. इट इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच ओके. जिसमें आप इन्वेस्टमेंट, टैक्सेस, इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लानिंग एंड देन वो जो आपके गोल्स होते हैं ना लाइफ में, लाइक इट कुड बी इंडिविजुअल गोल्स like education, Right. marriage, or it could be a family-wide goal also, Okay. and even on a corporate level. So family-wise, जैसे बच्चों के फ्यूचर के बारे में हम प्लान करते तो हमारे फाइनेंशियल गोल्स होते हैं कि बच्चों की एजुकेशन, फिर बच्चों को हायर एजुकेशन, फिर उनके मैरिजेस. सो एंड ऑल्सो समवन इफ दे वांट टू प्लान कि मैं 5 साल के बाद मैंने बिजनेस करना है, Right. शुरू करना है, राइट? तो अब 5 साल में के बाद का प्लानिंग वो अब शुरू करेगा. उसके लिए कितने पैसे कहाँ पे वो इन्वेस्ट करे ताकि वो पैसे ग्रो हो, और 5-7 साल के बाद जो भी उसकी फाइनेंशियल गोल है उसका एक टाइम भी होता है. ओके, मतलब वो हम जो timeline सेविंग भी हो देते इवन उस वो थोड़ी बढ़े भी कहीं पे इन्वेस्ट करें तो. हाँ, एग्जैक्टली. Right. क्योंकि एकदम से किसी ने बिजनेस स्टार्ट करना है. आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल ऑफ अ फाइनेंशियल गोल. राइट. एक इंसान है, उसने एक बिजनेस स्टार्ट करना है, हाँ जी. और उसके लिए उसको लेट्स से 10 लाख रुपए चाहिए, और उसकी अभी की आमदन उसको एकदम से इतना लमसम नहीं है उसके पास, एक्सेप्ट वो लोन ले. राइट. और लोन लेने के लिए भी हमें एक बेसिक अमाउंट Basic amount तो तो pay लगाना करना ही होता है, पड़ता right, है, exactly. राइट? सो
उसके लिए प्लान करना, कहाँ पर कैसे पैसा वो जोड़ सके, और एकदम से पैसा भी हर एक इंसान के पास नहीं होता, कईयों के पास होता भी है, और पर हम एक एवरेज बात करते हैं तो हमारे पास इतना लमसम नहीं होता, तो दिस इज वेयर फाइनेंशियल प्लानिंग कम्स, कि हम अपना प्लान करें अपने फाइनेंसेस को, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने बच्चों के लिए उनकी एजुकेशन प्लान करते हैं, हम अपने लिए अपनी लेट्स से बिजनेस प्लान करते हैं, अपनी मैरिज प्लान करते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए हायर एजुकेशन प्लान करते हैं, और आई वुड से द यंग पीपल ऑफ इंडिया दे शुड बी प्लानिंग फॉर देयर रिटायरमेंट राइट नाउ। हमें यही टाइम होता है जब वो कमा रहे हैं। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि लाइक इफ समवन इज अर्निंग पर्टिकुलर अमाउंट, लाइक जो सैलरी है, तो आप उसको बताते हैं कि कहाँ कहाँ पे आप कितना सेविंग कर सकते हो, किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज अगर उस पर्सन की कुछ फ्यूचर प्लानिंग है लाइक फॉर बिजनेस और समथिंग, इज इट समथिंग लाइक दैट? यस, बट देन ऑफ कोर्स उसमें सिर्फ सेविंग ही नहीं आती है, जैसे मैंने बताया कि हम इंश्योरेंस में भी गाइड करते हैं, हम उनको उनके फाइनेंशियल गोल्स ऑफ कोर्स जो अब हम बात कर रहे हैं, उसके अलावा टैक्सेस कहाँ पे कैसे उन्होंने सेव करने हैं, कहाँ पे टैक्स बच सकता है, और पहले से उसके लिए कहाँ वो पैसा जो है इन्वेस्ट करें, you know, there are like everything related to finance or money, right? Yes, of जो course, भी like taxing है, financial investment planning है, is saving all है, about finance, but ये नाम सिर्फ फाइनेंस है, but I'm telling you मोनिका कि मैंने आज से 20 साल पहले फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू की, तब मुझे पता भी नहीं था फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, लेकिन जैसे कहते हैं टैलेंट पर भगवान खुद ही देते हैं, सो अननोइंगली मैंने शेयर्स ये वो इन्वेस्ट करना शुरू किया इन म्यूचुअल फंड्स एंड शेयर्स एंड अदर बॉन्ड्स एंड अदर थिंग्स, और जब मैंने देखा कि कितना अच्छा मेरे को प्रॉफिट आ रहा है और मेरा पैसा बढ़ रहा है, तो मुझे बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट हुआ। सो मैंने कुछ शुरुआत तो ऐसे खुद की हॉबी की तरह की, फिर मैंने छोटे छोटे कोर्सेज करने शुरू किए, और ओवर द इयर्स मैं खुद फाइनेंशियली प्लान करके अपने और अपनी फैमिली के सारे गोल्स पूरे हुए हैं मेरे। सो लाइक व्हाट्स योर गोल? ओके, सो माय गोल एंड माय पैशन इज कि जो मेरे देश के, भारत के, हमारी जो इतना महान देश है, इसके जो यंग जनरेशन है, 30s 40s 50s में भी अब यंग ही है, सो ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, मतलब इनके पास ये इतना पैसा हो कि वो अपनी जिंदगी आराम से जी सके, खुशी से। और फाइनेंस कहने को सिर्फ फाइनेंस है, अगर आपके पास बैंक बैलेंस अच्छा है तो आपको चिंता नहीं होगी कि हाँ अब मेरा ये 4 साल बाद मेरे बच्चे ने कॉलेज में जाना है तो मुझे 10 लाख रुपए चाहिए या 20 लाख रुपए चाहिए, तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? Exactly. या कोई इमरजेंसी हो गई है, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई है एकदम से, या अब कोई भी मुश्किल टाइम बता के तो आता नहीं है, और हर एक की जिंदगी की ये बात है। जब किसी के साथ में भी ऐसी चीजें होती हैं तो सारी फाइनेंशियल जो भी प्लानिंग किसी ने छोटी मोटी की होती है ना, वो भी सब खत्म हो जाती है। इसका मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि एक आईटी के बहुत बड़े पोस्ट पे हैं मेरे क्लाइंट, तो जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया तो मैंने सारा उनका फाइनेंस जो पहले के हैं अब क्या कर रहे हैं कैसे, वो सारा हमें लेना होता है, पूरा डिटेल्स। तो उनके पास उनके लिए इमरजेंसी के लिए आप मानोगे कोई पैसे नहीं थे, ही वॉज नॉट रेडी, ऑल्दो अर्निंग इन लैक्स, मंथली सैलरी लैक्स में है, लेकिन अगर और छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल, और उनके पास इमरजेंसी फंड नहीं था, सो द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज गॉट हिम टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी इमरजेंसी, और इमरजेंसी तो बता के आती नहीं है, सो द फर्स्ट थिंग वाज उनका इमरजेंसी फंड बनवाया। उनका ऑफ कोर्स उन्होंने खुद ही कमाई, पर ये है कि I gave him the direction that yes, your 6 months of salary has to go in
योर इमरजेंसी फंड, Yeah. यू नो And I हमारे think और सारे आपने कंडीशंस एक होते हैं, एग्जांपल दिया है, बट प्रैक्टिकली मुझे लगता है बहुत सारे लोग ये चीज नहीं करते हैं, लाइक जानते आई नहीं हैव हैं, नॉट सीन, नॉलेज नहीं है। मेरे नियर में भी मैंने नहीं देखा है किसी को स्पेसिफिक इस चीज के लिए प्लानिंग करते हुए। Yeah, this- और जब क्या होता है कि जब वो सिचुएशन आती है तो सारी जो प्लानिंग, जो भी आपका कहीं का भी इन्वेस्टमेंट होता है या सेविंग्स होता है, वो सब चले जाते हैं, बिकॉज नॉर्मली नहीं करते लोग। That's true. Yeah. So, if we talk about women, so like how is the financial planning is important for women? Like इस women के लिए कितना यूजफुल है और कैसे? आई वुड से विमेन के लिए तो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में इलिटरेसी मतलब वो इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, Right. वो जागरूकता नहीं है लेडीज़ में, विमेन में, Right. कि चाहे वो अनमैरिड हैं चाहे मैरिड हैं। हमारे जो कल्चर में एक बात शुरू से चली आ रही है जनरेशन से, कि जो आदमी है, जो मेल है, चाहे वो फादर फिगर हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे ब्रदर हो, जैसे भी है घर का, Right. वही फाइनेंस को देखेंगे, वही Like पैसे he's a को decision संभालेंगे। maker. Yeah. सो वही कर सकते हैं और वही करेंगे। इट इज अ डन थिंग, इट इज अ नोन थिंग, Right. सो दैट इज कल्चरली प्रेजेंट इन आवर सोसाइटी। लेकिन ऐसा ठीक है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन इट्स टाइम कि विमेन शुड बी मोर अवेयर। उनको पता होना चाहिए कि हाँ, अगर स्पेशली जो खुद अर्न कर रही हैं, Right. कि उनका पैसा जो है कहाँ पर है, उनका खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, उनके खुद के इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, उनकी इंश्योरेंस होनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो तो यू नो केस टू केस वेरी करता है, अकॉर्डिंगली। हाँ जी। Yeah. Okay. So like what are the challenges you feel कि लोग क्यों नहीं करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग? If you सो talk about इसका एक चैलेंज जो हमारे बीच में है, सोसाइटी में है, इंडिया में है, वो तो यही है जो मैंने अभी बताया, कि कल्चरली हमें यही जनरेशन से हम ऐसे ही देखते हैं और फिर हम भी यही करते हैं। पर इसमें चेंज आ रही है। एंड मुझे लगता है कि एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, मतलब सब लोग मे भी शायद अग्री भी ना करें, बट एक चीज़ और भी देखी है मैंने, जब व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग इमरजेंसी और ऐसी वाली सिचुएशन, तो पीपल आर लाइक कि नेगेटिव क्यों सोचना है, मतलब इतना ऐसे सोच के ही क्यों चल रहे हो। ये एक धारणा बनी हुई है ना, बिकॉज दिस इज लाइक हाउ वी थॉट ना, एंड तो लगता है कि सोचना ही क्यों है, पॉजिटिव सोच के चलता है, बिकॉज प्रैक्टिकली द थिंग इज कि नेगेटिव भी होंगी चीजें, पॉजिटिव भी होंगी, बट हम लोगों को डर लगता है नेगेटिव की साइड बात करने में भी। और रियलिटी है, सबको पता है कि सबके साथ होगा, बट स्टिल बात नहीं करनी है। एक और बात बताती हूँ, जैसे फैमिली में सब बैठे होंगे, लेट्स दे आर हैविंग डिनर, बड़े भी हैं, 3-4 जनरेशंस हैं, 3 चलो जनरेशन, राइट। तो उसमें एक गिवन है कि जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वही पैसा देखेंगे, वही करेंगे, और पैसे के बारे में बात ही नहीं होती है हमारे घरों में। राइट। उसको टैबू समझा जाता ओपनली है, तो बात ही नहीं होती है सबके सामने। इट्स कंसिडर्ड अ टैबू कि पैसे के बारे में बात ही नहीं करनी है। एंड इवन आई थिंक सेम विद द इंश्योरेंस, जैसे लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस की जब बात आती है, तो फैमिलीज आर लाइक, कुछ फैमिलीज आर लाइक कि बात मतलब इंश्योरेंस क्यों लेना है, हम ऐसे सोच के चलेंगे कि हमें कुछ हो जाएगा आगे, ऐसे क्यों सोचना है। बट ये भी है कई बार। या एंड आई थिंक ये रीजंस हैं कि लोग उस तरफ प्लानिंग करते ही नहीं है। तो अब जो हमारी जो यंग जनरेशन है, दे आर सो अवेयर, दे आर इंटेलिजेंट और इतने स्मार्ट हैं, और काफी कुछ ये पिकअप करते हैं। तो घर में एक जो प्रोडक्टिव और खुशहाल माहौल ऐसा होना चाहिए कि बड़ों की भी बात सुनी जाए और यंग जनरेशन की भी बात को ध्यान में रख के मिलकर एक फाइनेंशियल डिसीजंस भी ली जाए, नॉट जस्ट कि उसको टैबू समझो कि हाँ जी हमने पैसे की तो बात ही नहीं करनी, राइट, यू नो। और पैसे के बारे में भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, उसमें बजटिंग आ जाता है, सेविंग आ जाता है, इन्वेस्टमेंट आ जाता है, कैश फ्लो आ जाता है, इट्स अ वास्ट फील्ड। राइट। सो मैम, व्हाट इज लाइक, दो चीजें होती हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल सिक्योर, सो लाइक ये दोनों सेम चीजें हैं और बोथ आर डिफरेंट? थोड़ा सा फर्क है, सिमिलर है। सो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वो इंसान होता है जिस, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग माई एग्जाम्पल बिकॉज आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, राइट। सो जिसके पास उसका सारी जो गोल्स हैं लाइफ के, उसकी उसने प्रोविजन ऑलरेडी सब कर ली है, उसके कैश फ्लो आ रही है, उसका एक रिटायरमेंट फंड है, वो सेट है, उसके जो बच्चों की एजुकेशन, फिर मैरिज, वो सारी उसने स्ट्रीमलाइन की हुई है फाइनेंशियली, सबको वो सेट किया हुआ है, इनकम स्ट्रीम बनी हुई है। और उसकी अगर एक
जिसको कहते हैं कि इनकम स्ट्रीम बंद हो जाए तो भी उसके पास और इंतजाम है। ओके। सो आजकल के टाइम में ये जरूरी है कि हम सिर्फ एक इनकम स्ट्रीम के ऊपर ना ध्यान देके कम से कम हमारे पास 2-3 इनकम स्ट्रीम्स होनी चाहिए। राइट, so this is financial secure, right? That is financial independent. Okay, got it. So financially independent. One of my clients, I'll give you example. एक मेरे client है, वो अभी like late 50s में हैं, तो उनकी जो प्राइवेट आईटी कंपनी है तो उसमें वो बंद हो गई कंपनी, तो उनको ले ऑफ कर दिया गया। राइट, मतलब कंपनी बंद होगी तो सारे ही ले ऑफ ही होंगे। सो उनका, पर क्योंकि उनकी ऑलरेडी काफी सालों से इन्वेस्टमेंट चल रही थी, उनका मैंने ऑलरेडी रिटायरमेंट फंड बनाया हुआ था, सो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वो हस्बैंड वाइफ, दे आर टोटली सिक्योर, दे आर टोटली फाइन। okay, because they already have an income stream coming in, another income coming in. That's an example, right, of financial independence. Now financially secure is a person who is जिसका मतलब सारी चीजें का उसने सब प्लान किया हुआ है, उसकी इनकम आ रही है, उसका कैश फ्लो चल रहा है, सॉर्टेड है, हाँ, कुछ भी बचा नहीं हाँ, है प्लानिंग और करने के उसकी लिए। जो इन्वेस्टमेंट भी चल रही है। लाइक फॉर एग्जाम्पल young people who are in 30s 40s, तो उनका अभी क्या है, उनका जॉब है, बिजनेस है, व्हाटएवर इनकम स्ट्रीम है, और उन्होंने ऑलरेडी फाइनेंशियली प्लान जो है कर रहे हैं, उनके गोल्स के अकॉर्डिंगली दे आर इन्वेस्टिंग एंड देयर लाइफ इज सॉर्टेड, यू नो, फॉर देयर घर की बात हो या व्हीकल की बात हो, कार, स्कूटर, व्हाटएवर, एंड ऑफ कोर्स उनकी जो फैमिली में जो भी उनके गोल्स है, लाइक आई जस्ट मेंशन चिल्ड्रंस एजुकेशन, देयर ओन रिटायरमेंट, ऑल दीज थिंग्स आर सॉर्टेड, उनकी इन्वेस्टमेंट चल रही है, सो दोज पीपल विल बी कॉल्ड फाइनेंशियली सिक्योर। ओके, नाइस। ऑलमोस्ट लाइक नॉर्मली सुनने में एक ही जैसी लगती हैं दोनों चीजें, बट देयर इज अ डिफरेंस। देयर इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस। सो मैम, लाइक व्हाट डू यू, व्हाई सो मेनी वुमेन इन इंडिया आफ्टर लाइक अर्निंग के बाद भी, हमने भी ऐसा देखा है कि जो लोग अर्न भी कर रही हैं वुमेन, उन लोगों को भी नॉलेज नहीं है फाइनेंशियल, यू नो, इन्वेस्टमेंट और दिस प्लानिंग की। उनको क्या लगता है कि मतलब उनको ज़रूरत नहीं है, या बिकॉज ऑफ सोसाइटी और फैमिलीज? आपको रीज़न क्या लगता है कि क्यों नहीं है उनको नॉलेज? पहले मैं आपको थोड़े से डिटेल्स बताती हूँ कि हमारी जो कंट्री में जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, उसमें सिर्फ 30% विमेन हैं। राइट, तो हालांकि काफी हेफ्टी है वो भी अबाउट एज पर योर एक्सपीरियंस ऑल्सो, जैसे आपके भी जो क्लाइंट्स होंगे, तो आप यू जस्ट टेल अस कि कितने उसमें वुमेन है इंडिपेंडेंट वाले, जो अलोन, लाइक यू कैन से द इंडिविजुअल वन, और कितने नहीं है? मैं वही बता रही हूँ कि 30% यू कैन से, सो 30% इन्वेस्टमेंट सिर्फ विमेन कर रही हैं, जबकि दे शुड बी मोर देन 50%। बिकॉज मैं पर्सनली ये समझती हूँ, क्योंकि जो इवन इफ होम मेकर्स हैं, तो घर में जो लेडी है उसका बिकॉज दे आल्सो हैव मनी बड़ा, हाँ, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि जब मैंने अपनी बजटिंग जो है एक्चुअली यू नो सबकॉन्शियसली मैंने अपने पेरेंट्स से सीखी, स्पेशली माय मदर, बिकॉज शी वाज टू मेंटेन अ डायरी, वो लिखते होते थे रोज के खर्चे, महीने के खर्चे, लाइक दैट। सो आई थिंक आई गॉट इट from my parents and I of course worked on it and studied on that. So लेकिन वो टैलेंट है, और women में तो बहुत ज्यादा है, because वो घर को ऑलरेडी मेंटेन कर रहे होते हैं मोस्टली। आपको पता होगा, हमने मूवीज में और सोसाइटीज और घरों में भी देखा है कि जो मम्मियां हैं वो कुछ पैसे ऐसे छुपा के कहीं रखते हैं, ये पता ही नहीं होता है कि सेविंग कहाँ से कर ली इन्होंने। हाँ, पर वही बात है ना कि अगर वो सेविंग उन्होंने की है, तो वो पैसा इंस्टेड के घर में कहीं पर वो अलमीरा में या कहीं लॉकर में रख दें, इंस्टेड ऑफ दैट दे शुड इन्वेस्ट। तो वो अवेयरनेस ऑफ कोर्स सिटीज में है, इट इज ग्रोइंग, बिकॉज इकोनॉमिकली ऑल्सो अवेयरनेस बढ़ रही है हमारी जो मेट्रो सिटीज हैं एंड ऑल्सो टियर 2 सिटीज, बट रूरल women आई थिंक it is a area उसका भी रीजन नॉलेज है, बिकॉज नॉलेज नहीं है तो लोगों को, यू नो, उनको डर लगता है कि इट्स बेटर कि पैसे हमारे पास ही सेफ रहे,
यू नो कि क्योंकि नॉलेज नहीं है तो रिस्क का भी डर लगता है कि पता नहीं यू नो शेयर मार्केट, और अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसमें तो नॉर्मली लोगों को नॉलेज है ही नहीं, जो लोग इन्वॉल्व हैं सिर्फ उनको नॉलेज है। बिल्कुल, दैट्स राइट। सो आप नॉलेज की बात कर रहे हो, तो नॉलेज इज लिंक्ड टू एजुकेशन, राइट, एंड ऑल्सो एजुकेशन इज अगेन लिंक्ड टू योर फैमिली वैल्यूज। इन इंडिया you will be surprised that सबसे ज़्यादा investment is coming from Eastern India, Mizoram, Nagaland, ओके, Sikkim, Arunachal Pradesh. ओह, बिकॉज मुझे Women- लगता है इधर ये नॉर्थ में तो सब And then expenses में लगे हैं। comes Delhi, Yeah. and then Maharashtra, and then Gujarat. Okay. So I mean, just see, and why is that? क्योंकि Eastern India में girls' education is a literacy priority. rate. They Yeah. focus on that, and it is a matrilineal society where जो lady है, जो women है, they are given more power and more authority to take decisions. घर की जो decisions हैं वो Right. ladies ले सकती हैं। दिस इज ऑल्सो द रीजन, एंड अनदर रीजन इज कि कहीं पे वुमेन को भी ऐसा लगता है कि लाइक हमें करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज लाइक हस्बैंड्स आर देयर, फादर्स आर देयर, कि वो कर लेंगे। मतलब मुझे लगता है कुछ लोगों का माइंडसेट ये भी है वो कि वी आर नॉट द Yeah. लाइक यू नो एग्जैक्ट पर्सन, कि हम लोग इस चीज के लिए सही इंसान नहीं है, तो करने देते हैं जो कर रहे हैं, So- हमारी इतनी जरूरत नहीं है। या You are right, but in many families it's changing. ये बदलाव आ रहा है। राइट, और ये आना भी चाहिए, लाइक आगे और आना भी चाहिए। या बिल्कुल, that's right. So, like, how can a woman protect themselves financially in case of, if we talk about divorce or separation? मतलब बहुत the basic one कि basic में कैसे कर सकते हैं? If we talk about the situation. It is a sad reality, but it is a reality. Yeah. It is a truth also, and for this, women should be at least financially prepared. और उसका सबसे पहला I would advise and suggest कि mothers के ऊपर बहुत जिम्मेवारी है कि अपनी daughters को जब पढ़ा रहे हो तो साथ ही साथ उनको एक इस चीज़ की, प्रोफेशनल right. एजुकेशन और हेल्प देम स्टैंड ऑन देयर फीट। वो अपने पैरों पे खड़ी हैं, अपने प्रोफेशन में, अपनी अच्छी एजुकेशन, चाहे वो जॉब करें चाहे बिजनेस करें, Right. है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो खुद उनकी एक इनकम स्ट्रीम हो, खुद कमाएं। दैट इज द बेस्ट, क्योंकि अगर वो कमाएंगी तो जो वो उनको दे विल हैव दैट कॉन्फिडेंस एंड द इंडिपेंडेंस, you know, they will be self confident and self independent, of course, and they'll have more control, self control on their many of the decisions of their life. Right. तो ये पहला है, and second, of course, they should have their own bank account, savings, investments, और उसका उनको अवेयरनेस भी होनी चाहिए। एक मेरी क्लाइंट हैं कि उन्होंने वो जॉब करते थे, उनके हस्बैंड की जॉब किसी कारणवश नहीं थी उनकी, मतलब बंद हो गई कंपनी और उनकी जॉब चली गई। तो वो दिन रात मेहनत करती रहीं, 2 बच्चे भी, और हस्बैंड जो है वो घर संभालते थे, करते थे, ऑब्वियसली घर पे थे, ही वाज नॉट वर्किंग, नॉट एम्प्लॉयड। तो उन्होंने क्या किया, अब उसको वो अपना पूरा पैसा कहाँ गया वो कुछ नहीं उसने ट्रैक नहीं किया, एंड ऑल द मनी हस्बैंड के पास था, और उन्होंने उसको गलत जगह लगाकर पैसे, Okay. आई वुड से इन ट्रेडिंग एंड गैम्बलिंग एंड ऑल, और वो मतलब कुछ भी पैसा रहा नहीं, एंड शी वाज शॉक्ड वन फाइन डे Yeah. कि I think ये मैं situation इतने काफी लाखों women's कमाए, के साथ है, Sorry? हुई होगी। I think the same situation happened with the like so many, काफी लोगों के साथ ये चीजें होती हैं बहुत actually बहुत में। फैमिलीज में ये Yeah. चल रहा है, एंड ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी देश की विमेन, औरतें अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं। सबसे पहले फाइनेंशियली एजुकेट हो, Educate, right. you know, Then वो then जागृति ही invest कर आनी पाएंगे। शुरू हो गई है, लेकिन और ज़्यादा ज़रूरत है। Right. So, if we talk about like starting of investment, तो beginners के लिए एक स्मॉल अगर हम अमाउंट की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या लगता है कि सबसे पहले किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए?
मतलब किसी के पास बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं है किसी की, एंड वे जस्ट कोई भी लाइक 20s में है, 25 जैसी जॉब लगती है किसी की, एंड उस फेज़ में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि स्टार्टिंग फेज़ में सबसे पहले किधर जाना चाहिए? ओके, सो जिसकी न्यू जॉब है और अभी उनकी इतनी ज़्यादा हाँ, मतलब एक सैलरी स्मॉल नहीं, अमाउंट की अगर हम स्टार्टिंग बात ऑफ, करते हैं, यस, तो उनके लिए सेफेस्ट ऑप्शन इज म्यूचुअल फंड्स, ओके, क्योंकि शेयर्स वगैरह में ट्रेडिंग एंड ऑल, आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज नेवर गेट इनटू इट अनलेस आपने वो पढ़ाई की पढ़ाई है। ना हो, पहले पढ़ लो, इन्फॉर्मेशन, अगर आपने कोई कोर्स किया उसको समझा है ना, शेयर मार्केट को, राइट, ये जो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस है वो कैसे चलते हैं, क्या होता है, कैसे शेयर्स आपने चूज करने हैं, फिर इन्वेस्ट करना है, इट्स अ होल मतलब सिर्फ किसी के सजेशन से इस चीज में मत जाओ, नहीं, बिकॉज नॉर्मली क्या हो रहा है कि but फ्रेंड सजेस्ट करते हैं एंड हाँ, लोग फिर वो इन्वेस्ट कर देते हैं, ये फिर तो लॉस हो ऐसे जाता तो है। बहुत केसेस है। अभी right. एक मेरा क्लाइंट लास्ट मंथ उन्होंने बताया मुझे 1 लाख रुपए उनके वही ट्रेडिंग में उन्होंने विदाउट एनी नॉलेज, तो मैंने यही पूछा, मैंने कहा आपने कुछ कोर्स या कुछ आपको नॉलेज है, Right. आपने किया? तो ही सेड नो मैम, सो आई सेड कि दैट्स व्हाई यू लॉस्ट इट। एंड आई थिंक नॉलेज अगर नहीं है और करना है तो लाइक किसी प्रोफेशनल की हेल्प जरूर लेनी चाहिए, बट लोगों को लगता है नहीं हम सब कुछ खुद कर लेंगे एंड फिर लॉस हो जाते हैं। Yes, 93% of people who get into share trading, they lose. राइट, वो अपना पैसा गवा देते मैंने हैं। खुद मेरे आसपास इतना देखा है कि बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि जब आप कॉर्पोरेट जॉब में हो आप इतना टाइम नहीं निकाल सकते कि आप इतना ज़्यादा पढ़ लोगे शेयर मार्केट के बारे में, या फिर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं हो सकती। आप सिर्फ इन्फ्लुएंस होते हो अपने फ्रेंड से, सर्कल से, कलीग से, वो आपको बोलते हैं कि ठीक है इसमें इन्वेस्ट कर दो, एंड करते हैं एंड देन फिर लॉस होता है। That's so true. Yeah. ये अभी 2024 में about 12 लाख करोड़ is the amount of money, मतलब wasted on, जो कि लॉस में गया है, of young people of India. They have Right. just lost that money in this gaming राइट, and trading. एंड देन वो फिर मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, लाइक बिकॉज सो या। सो एक और बात, मैंने आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया था, हाँ जी, जो दे आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ। म्यूचुअल फंड्स भी हमारे ही इंडिया में 4,000 से ज़्यादा हैं। राइट, तो उसके बारे में भी पढ़ना ही पड़ेगा पहले। हाँ, तो वही बात आ जाती है, दैट इज वेयर एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स लाइक मी, दैट हम यही करते हैं कि एक जो इंसान है जिसने वो इन्वेस्ट करना है, वो कितना करना है, उसकी क्या टाइमलाइन है, उसकी क्या रिस्क एपेटाइट कितना है, कितनी रिस्क वो ले सकता है, उसकी इनफैक्ट उसकी पूरी फैमिली का हम सारा वो डेटा लेकर, उसका लेकर, और फिर उसके गोल्स बनाते हैं, एंड देन वी सजेस्ट, ओके, एंड दैट्स हाउ वी आर लिटरली लाइक हाथ पकड़ के हम गाइड करते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट और कैसे करना है। ओके, सो मैम अगर हम वुमेन की बात करते हैं तो इमरजेंसी फंड या कोई भी फंड लाइक वुमेन कैसे, उनको कितने अमाउंट का उनको बनाना चाहिए अगर हम इंडिविजुअल किसी वुमेन की बात करते हैं, लाइक वो अपनी अगर हम ऐसे बात करें स्पेशली कि फैमिली को भी नहीं पता है, शी वांट टू इन्वेस्ट समथिंग लाइक पर्टिकुलर, तो कितने मिनिमम अमाउंट से वो कर सकते हैं स्टार्ट? अगेन इट डिपेंड्स कि उनकी इनकम कितनी है, स्ट्रीम कितनी है। Okay. और लेट्स से एक लेडी हैं, उनकी मंथली सैलरी 1 लाख है, और घर में और कोई अर्निंग मेंबर नहीं है, शी इज द सोल अर्निंग मेंबर, ओके, देन द मिनिमम शी शुड हैव इन इमरजेंसी फंड इज 6 lakhs. दैट इज, हम सजेस्ट करते 6 महीने का, तो आपका जो मंथली एक्सपेंस है, लेट्स से 1 लाख उसका पूरा निकल जाता है घर के खर्चे में, और other things like looking into insurance and some हमारे loans भी तो चलते हैं घरों में, so वो सब का मिला के उसका 1 लाख का कमाई और 1 लाख का खर्चा 1 महीने का, minimum is 6 lakhs, but if she can do 9 to 12 months का, जैसे 12 lakhs तक वो अपना secure as emergency fund रखे, तो that is ideal, okay, but minimum 6 lakhs has to be there. okay. And let's talk about like SIPs, that systematic investment plans. So is it a good option for women? SIP is a wonderful thing. I would say कि it is like जैसे कि ना एक blessing है, हाँ, आजकल के टाइम में। Right.
बिकॉज उसमें एक बहुत बहुत छोटा सा अमाउंट आपको मंथली करना होता है। और सपोजिंग जैसे आपने बात की कि कोई लेट्स से स्टूडेंट भी है, मैंने देहरादून में एक कॉलेज में मेरा लेक्चर था फाइनेंस पे, तो उसमें स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स के पास तो सिर्फ पॉकेट मनी होता है। राइट। तो मैंने उनको बताया कि अगर तुम 500 रुपये भी अपने पॉकेट मनी से सेव करो और इन्वेस्ट करो तो आपके कितने बन सकते हैं इन लेट्स से 5 years 10 years। आपको कुछ किसी भी चीज की खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है तो यू विल हैव सम मनी विद यू। डाउन पेमेंट तो होगी, अगर लोन भी लेना है तुमने, कार ही खरीदनी है, कोई व्हीकल खरीदना है, सो दैट इज व्हाट इज। और 500 क्या है आजकल के टाइम में, राइट। एक बच्चे के लिए 500 रुपया तो आई मीन एक आउटिंग में कहीं लंच के लिए भी जाओ 500 ऐसे ही खर्च हो जाता है। और फैमिलीज का आई वुड से आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ओके। 5000 आज मैं एक नॉमिनल रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली के साथ हम 5 लोग जाके अगर डिनर करते हैं तो आराम से 5-6,000 लग जाते हैं। Exactly, right. Isn't that right? Yeah, that's right. But if that 5,000 every month you are saving and investing, I'm talking about mutual fund. I'm not even talking about any risky investments or any government. I'm just talking about normal mutual funds. उसमें वो 5,000 in 10 years will become around 12 lakhs. In 10 years, 5,000 every month, in 10 years, you're actually saving 6 lakhs over 10 years. Okay. Every month 5 lakh. Right. तो साल का 60,000 maths करें तो it comes to how much? 6 lakhs you are investing in 10 years. Yeah. But वो डबल हो जाता है। डबल हो जा रहा है। और यही अगर 15 साल आपने कंटिन्यू रखा तो वो तकरीबन बन जाएगा अबाउट 23 lakhs, 22, उससे भी डबल, just in 5 more years. और and if you keep investing for 20 years, can you imagine, can you just guess how much money it will be? 48 lakhs. It will be touching 50 lakhs. 50 lakhs. I think ये बिगनर्स के लिए भी बहुत अच्छा प्लान है अगर। It's an example 5,000 is a like which I am just sharing with everyone जो भी सुन रहे हैं कि सिर्फ एक 5,000 आप आज शुरू करते हैं, हाँ जी, तो आप 20 साल के बाद आपके पास आधा करोड़ तो है ही है। राइट। दिस इज द मिनिमम। और उस टाइम पे इस पैसे की कितनी जरूरत होगी आपको? 15-20 साल के बाद कुछ ना कुछ तो फाइनेंशियल गोल निकल ही आता है जिंदगी में। So, like, should women prioritize paying off the debts or investment पहले की तरफ सोचना चाहिए पहले? It depends from case to case. Okay. It basically. But मैं क्वेश्चन को फिर से करेक्ट करती हूँ कि अगर वुमेन के पास ऑप्शन है कि आपको डेब्ट्स को पे करना है और यू कैन गो फॉर इन्वेस्टमेंट, तो उस सिचुएशन की So let's say in financial terms, the first thing is to pay off the debt. Okay. So आज से काफ़ी साल पहले मेरी फैमिली में भी काफ़ी डेट्स, नॉट टू मच बट कुछ डेट्स थे सभी में। आई थिंक अभी की अगर हम बात करें तो सारी फैमिलीज में होते हैं बिकॉज लोगों के पर्सनल लोन्स होते हैं एंड लाइक फैमिली जो आपके प्रॉपर्टी वाले लोन्स हो गए, हाउस लोन्स, और पर्सनल तो लोग लेके बैठे हुए ही होता है हर कोई। कॉर्पोरेट में तो ये है। सो द फर्स्ट थिंग, अगर आपके पास कुछ लमसम है या कहीं से पैसा आ रहा है, जस्ट टेक केयर ऑफ योर डेट। पहले अपना डेट फ्री हो जाओ और फिर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। ओके, दैट इज एज अ प्रिंसिपल, बट ऑलवेज इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट प्रैक्टिकल, बिकॉज आजकल तो यही है कि यही व्हीकल लोन है, यू नो, और वो चलता है, हाउस लोन चलता है, दिस दैट, बट वी कैन मैनेज दोज। वी हैव वेज इन विच you know you can manage your loans and you can pay them much earlier. मतलब उनके जैसे 15 साल का है, उसको 10 साल में आपने उतना पैसा इकट्ठा करके उस लोन को कैसे पे ऑफ कर देना है। तो there are all ways, but then investment is needed, of course. So I think इसके लिए सबसे ज़्यादा तो encouragement की भी ज़रूरत होती है। अगर हम वुमेन की बात करते हैं तो like हम वुमेन को कैसे encourage कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, स्पेशली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? मतलब एज पर योर सजेशन, मतलब आप क्या सजेस्ट करते हो कि किस तरीके से हम वुमेन को एनकरेज कर सकते हैं? बिकॉज सबसे पहले तो उनको एनकरेज करना होगा, तभी जाके वो नॉलेज लेंगे, अंदर नॉलेज लेंगे, देन ही वो इन्वेस्ट करेंगे। तो हम इसके लिए मतलब क्या कर सकते हैं? तो
आई वुड से पहली बात तो ये है कि आजकल जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी विमेन को एनकरेज करने के लिए टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, टू स्टार्ट सम वर्क, यू नो, चाहे वो काफी छोटा ही अच्छे बिजनेस loans हो, भी चल सो देते हैं, I guess. लोन्स देते हैं। एक है मुद्रा, मुद्रा योजना Okay. गवर्नमेंट की है, और उसमें विदाउट एनी कोलैटरल, ओके मोर्टगेज की जरूरत नहीं है, एंड द गवर्नमेंट गिव्स थोड़ा अमाउंट है, ओके तो आई थिंक 5 to 10 lakhs ऐसा कुछ है, तो दैट इज अनदर वन। फिर एक अन्नपूर्णा करके योजना है गवर्नमेंट की, उसमें जो So these are for फूड women, रिलेटेड, दीज आर फॉर विमेन, Okay. फूड रिलेटेड जो स्टार्ट करना चाहते हैं वो, ओके एंड एक और है स्टैंड अप इंडिया, Okay. उसमें 10 लाख to 1 करोड़ का के बीच में लोन गवर्नमेंट दे रही है, बट दैट इज ओनली फॉर ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव्स, ओके उसके लिए है। अच्छा सो अगर हम रिटायरमेंट फंड की बात करते हैं तो व्हाट इज़ योर सजेशन कि वुमेन को लाइक मैन से, उनके हस्बैंड से एक सेपरेट फंड चाहिए होता है वो रिटायरमेंट, और इट कैन बी लाइक वुमेन को अलग से करना चाहिए अपना रिटायरमेंट फंड, या फिर एक ही जैसे फैमिली में हस्बैंड ने प्लान लिया होता है दैट इज इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज Yeah. हर एक फैमिली का अपना डायनामिक होता है। लाइक Okay. व्हाट डू यू थिंक हर एक फैमिली का अपना डायनामिक होता है, हर एक हस्बैंड वाइफ का भी अपना अलग अलग एक Right. यू नो अंडरस्टैंडिंग होती है। Yeah. आई वुड सजेस्ट इट शुड बी अ जॉइंट अकाउंट ओके इन विच बोथ आर अवेयर, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल, राइट कि और द जो वाइफ है उसको पता है कि हाँ इतना पैसा है, ये है, कैसे कोई भी इमरजेंसी प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के या साथ कुछ सब- भी ऐसे ना कुछ भी अनहोनी भी हो जाए, Right. द वुमन ऑफ द हाउस, द लेडी ऑफ द हाउस शुड बी प्रिपेयर्ड इन एवरी वे। राइट तो लाइक एक भी इज ओके अगर आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, ट्रांसपेरेंसी है, जॉइंट अकाउंट इज फाइन अगर अंडरस्टैंडिंग है दोनों की। अब अगर आप बात करते हैं कि इन अ डिवोर्स केस you just Yeah. mentioned, or a separation case, Yeah. तो उसमें I would suggest कि the woman should consult a lawyer and get to know कि what are her rights, Okay. उसके जो मेंटेनेंस के, उसकी एलिमनी के, है ना, that is the first thing to be done in such unfortunate cases. And then एक स्त्री धन होता है जो शादी के टाइम पे वुमन Like the jewelry and all, jewelry right? and maybe some cash or could be land also, Right. जो स्त्री धन है वो उसको पता होना चाहिए, और वो उसको मिलता भी है, वो तो गवर्नमेंट ही देती ही है। Right. एंड देन ऑफ कोर्स अगर कोई लैंड है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई घर है या कुछ है, उसमें उसका कितना शेयर है उसको पता होना चाहिए, Okay. एंड शी इज ऑल्सो इन विद इन हर राइट्स टू आस्क फॉर दैट। राइट आई थिंक मुझे लगता है अपने राइट्स ना पहले खुद को ही पता होने चाहिए, सेल्फ दिस इज अ अवेयरनेस, बेसिक थिंग एटलीस्ट। जागृति बहुत जरूरी है। राइट Self awareness for everyone, not only for women, I would say for men also. बिकॉज इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन आप प्रोफेशनल हेल्प लोग ले सकते हैं, लेना भी चाहिए, बट आपको वो तो बेसिक ले- नॉलेज तो होना चाहिए। वो तो लेनी चाहिए। बिल्कुल। फॉर लाइक हम लोग, हमारे घरों में एक प्रॉब्लम है कि हम लोग विल नहीं बनाते हैं। राइट कितनी ही जगह, कितने ही इंस्टेंसेस हैं कि इंसान जो है वो तो चलो अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, राइट एंड उसके बाद में फैमिली बहुत सफर बहुत करती है, problem बिकॉज आती लोगों है। को बैंक्स का नहीं डिटेल्स पता होते हैं कि कहाँ पे बैंक अकाउंट्स थे, कहाँ पे सेविंग्स थे। नहीं, गवर्नमेंट वाली जॉब्स में लाइक बहुत ऐसा होता है, स्पेशली मैंने ऐसे कुछ केसेस में पढ़ रही थी एक बार, जिसमें जो हमारे आर्मी पर्सन्स होते हैं जो बॉर्डर पे उनकी डेथ हो जाती है, उनकी फैमिलीज को नहीं पता होता है कि उनकी सैलरी कैसे आनी है, See. कहाँ से मिलेंगे पैसे, क्या yeah, उनको, so difficult. या सो Yeah. आई थिंक इसका सॉल्यूशन नॉलेज ही है कि सबको पहले बेसिक एटलीस्ट फैमिलीज में So, लोगों को भी, वही इट्स है नॉट कि- अबाउट वुमेन, आई थिंक मेंस को भी ना अपनी फैमिली में चीजें शेयर करनी चाहिए एटलीस्ट दीस Men also have that responsibility. If your wife is not taking interest, make her take interest. राइट उसको बताओ, उसको अवेयर करो कि हाँ ये मैं कर रहा हूँ, ये इधर है, ये सामान
इन द सेंस गोल्ड वगैरह अगर घर में है Right. वो कहाँ पड़ा है, गोल्ड तो खैर विमेन को पता ही होता women को पता है, होता बट है। स्टिल समटाइम्स कई डॉक्यूमेंट्स इतने जरूरी होते हैं नहीं पता होते। नहीं पता होते। तो एक एंड तो उसके बाद में फिर बैंक्स एंड ऑल ना इतने ज्यादा उनको घुमाते रहते हैं, ये नहीं हुआ है, तो वो विल नहीं इज हुआ वेरी है। वेरी नेसेसरी। अब वहीं पे हम जैसे हमारा वो है ना प्रोफेशन, दैट इज वेयर वी गाइड पीपल कि क्या करना है, कैसे करना है, उसको किस तरह से करना है, ताकि तुम्हारा कोई फायदा ना उठा सके ना। राइट। आजकल फिर धोखाधड़ी भी बहुत है, तो आपको राइट एडवाइस एग्जैक्टली, भी दिस इज तो ऑल्सो जरूर। इम्पोर्टेंट कि आप किसको सेलेक्ट कर रहे हो एडवाइजिंग के लिए, दैट्स So, ऑल्सो awareness बिकॉज के आपकी सारी लिए डिटेल्स उनके पास जाने वाले हैं, तो ये भी बहुत जरूरी एक तो है। गवर्नमेंट है, फिर हम भी हैं, वी आर प्रोफेशनल्स, सो अवेयरनेस के लिए वी आर डूइंग आवर बेट। इनफैक्ट हम आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि एक फाइनेंस पर्सन को आपने बुलाया है Yeah. टू एंड इतने आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इसकी बहुत ज़रूरत है लोगों को, यू नो इन बातों की नॉलेज हो, Right. अवेयरनेस हो। सो लाइक आपको क्या लगता है कि कौन सी कॉमन ऐसी मिस्टेक्स हैं जो वुमेन कर रहे हैं, अगर हम बजटिंग की बात करते हैं या उसकी बात करते हैं, जो बहुत बेसिक आपको लगता है कि ये कर रहे हैं, ये नहीं कर, एटलीस्ट ये तो नहीं करना चाहिए। एक्चुअली इफ यू आस्क मी, बजटिंग तो करते ही नहीं है लोग। हाँ। The basic thing for a family, even for a person, is budgeting. Make your budget. Right. That is very, very necessary. That's the first step to being financially independent. Okay. So, like, how do cultural expectations affect women money choices in India? I think the same you have covered. I think guess. वो कवर हो गया ना हमारा कि वो यंगस्टर्स को ही नहीं कुछ समझते हैं फैमिली में, Right. तो विमेन तो फिर और पीछे आती हैं। तो वही बात है कि अगर एक फैमिली मिलकर डिसीजंस लें हाँ जी। और ट्रांसपेरेंट हो पैसे के मामले में, तो बहुत ही अच्छा हो, और बिना बात के झगड़े और फ्रॉड ये सब ना हो Okay. हमारे घरों में। Now let's have a rapid fire round. Okay. Okay, Yeah. sure. So like gold or mutual funds? Again, it depends on situation to situation. Okay. If a person is just starting investing, तो उसको मैं म्यूचुअल फंड्स बताऊंगी। Okay. और फिर जब उसके पास 10, 15, 20 लाख हो गया इन्वेस्ट ओवर कुछ टाइम में, तो थोड़ा बहुत जो है गोल्ड में, हमारा फाइनेंस टर्म्स में ऐसा है कि 5 to 10% शुड बी इन्वेस्टेड इन गोल्ड। Okay. Like इसको भी instant decide नहीं कर सकते. There is also a need Again, of knowledge. it depends from situation to situation. Every individual, every family is different. Their requirements are different. Okay. वैसे तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एज अ इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट, आप मुझे पता ही कि आपका आंसर क्या होगा, बट स्टिल आई एम आस्किंग। See, you're already learning so much. Yeah. So spend on luxury or invest in same money like in funds, or you know what do you pick? I know Investment, that. investment. Yeah, I am okay. all for investment. Yes, once you have invested and your money has grown, then spend. On luxury, but अभी उल्टा हो रहा है एक्चुअली में। मेरा एग्जाम्पल आई एम टेकिंग, 15 years हो गए हैं मुझे इन्वेस्ट करते, अब मेरी इन्वेस्टमेंट ग्रो हो चुकी है, अब मैं क्या क्या आई कैन बाय, बट आई एम हैप्पी टू बाय क्योंकि मेरे पास है। बट मैम उस माइंडसेट को कैसे चेंज करें कि पहले तो एक गुच्ची का बैग ही चाहिए, बाद में इन्वेस्ट करेंगे। लाइक आई सेड कि Yeah. दैट इज व्हाई वी आर हियर, बताने के लिए, समझाने के लिए, बट द चॉइस इज योर्स। हर एक की अपनी चॉइस होती है। Okay. बट गवर्नमेंट इज डूइंग देयर बेस्ट इकोनॉमिकली, जो अवेयरनेस अब हो रही है, एंड सो मेनी कंपनीज आर देयर, इवन आई वुड से गवर्नमेंट की जो अभी स्कीम्स मैंने बताई हैं, हाँ जी। दे आर ऑल्सो एनकरेजिंग पीपल टू इन्वेस्ट। Right. अब आपने एड देखा होगा, म्यूचुअल फंड सही है, Yeah. है ना, जहाँ पे वो क्रिकेटर भी हैं, MS धोनी, Right. तो वो क्यों कर रहे हैं गवर्नमेंट? बिकॉज द मोर पीपल इन्वेस्ट, पहली बात तो उनके लिए अच्छा है, और फिर हमारा जो देश है, जो ऑलरेडी हमारा अमृत काल चल रहा है, हमारा देश बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहा है, तो उसमें और ज्यादा हम आगे बढ़ेंगे। Right. Spend or save on your first salary. सेव ये थोड़ा मुश्किल है।
सो हम इसमें ये कर सकते हैं, लाइक इफ माय क्लाइंट आस्क मी कि इतना है ये वो, सो व्हाट आई से कि ओके व्हाट इज योर सबसे छोटी आपकी जो डिजायर क्या है जो रीजनेबल हो, तो आप उतना निकाल के बाकी सेव कर लो. लाइक योर सजेशन इज सेविंग, बट अभी रियलिटी क्या होती है कि सैलरी से पहले प्लानिंग हो चुकी होती है उसको खर्च करने की, एटलीस्ट फॉर फर्स्ट के लिए तो that's यही so होता है. या वन फाइनेंशियल हैबिट यू पर्सनली फॉलो. बजट. बजट. बजटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप एक डायरी बनाओ, उस डायरी में आप सारे हेड्स लिखो, एक्सपेंस, इनकम, एक्सपेंसेस, खर्चे सारे. और मैं पर्सनली क्या करती हूँ कि मैं सबसे पहले सोसाइटी के लिए 10% ओके. ऑफ माई इनकम आई ओके, टेक लाइक आउट. सोसाइटी वेलफेयर और समथिंग. यस. Okay, चाहे that's वो आप ऑर्फनेज में करें और चाहे आप गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट की भी कई ऑर्फनेजेस हैं और ओल्ड एज होम्स हैं और ऐसे बॉडीज हैं जिसमें हम उसका टैक्स बेनिफिट भी Okay. मिलता है जब हम ऐसे आई वुड से दान करना. हाँ जी. हाँ. पर वही है कि सबसे पहले मैं पर्सनली 10% जो है, या जितना भी जिसको जैसे भी लीडिंग हो, 5% हो, 50% हो, Right. पर हमें हमारा फर्ज है जो पुअर लोग हैं, बीमार लोग हैं और बहुत सारे दुनिया में दुखी लोग हैं और उनके कई लिए भी. मेंटली चैलेंज्ड भी Right. हैं, कई विडोज हैं, कई लाइक आई सेड ऑर्फन्स हैं. तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी सैलरी में, अपनी कमाई में सबसे पहले इस अपनी देश में ऐसे जो दुखी लोग हैं उनके लिए भी कुछ योगदान दें. या. उसके बाद अब आपने क्वेश्चन पूछा है तो इसको मैं एलैबोरेट करती हूँ. सो 10%, जस्ट आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल. सो 10% गोज देयर. उसके बाद 40% अपने घर को चलाने के लिए, या अगर इंडिविजुअल है अपने लिए, एंड द रेस्ट 50% उसमें 10% आप अपनी डिजायर्स के लिए, लाइक यू सेड कि 10 to 20% डिजायर्स के लिए रख लो. Right. कि जैसे आपने कोई EMI, कोई गाड़ी ली है उसकी EMI जानी Travel है, भी बोल सकते हैं, या even. ट्रैवल करना है कुछ यही तो उसका रख के बाकी 30 to 40% सेव इन्वेस्ट. Okay. Rural women or urban women, who saves more? अर्बन. Urban. बिकॉज अवेयरनेस है ना, Okay. एजुकेशन है, दे आर मोर एक्सपोज टू इकोनॉमिक हैपनिंग्स. Okay. One government scheme every woman must know. गर्ल चाइल्ड के लिए है सुकन्या समृद्धि योजना. Okay. वो बहुत ही अच्छी है फॉर यंग गर्ल चाइल्ड के लिए, पेरेंट्स Okay. कर सकते हैं उसमें. Okay. और फॉर अ वुमन फॉर हर ओन सेल्फ, फॉर आई वुड से गवर्नमेंट स्कीम में एक तो MIS है, मंथली इनकम स्कीम. थोड़ा अगर एज ज़्यादा है, रिटायरमेंट की तरफ है, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम. Okay. Biggest money mistake you have done in your life? विदाउट नॉलेज, विदाउट स्टडिंग, आई इन्वेस्टेड सम मनी. मैंने जॉब छोड़ी थी तो मुझे ग्रेचुटी एंड EPF PF वगैरह मिला था, तो मैंने शेयर्स में लगा दिया. Okay. सो आई हैव बीन देयर, डन दैट. Okay. तो 20 साल पहले मैंने ये किया और उसका फिर मुझे नुकसान भी हुआ, कुछ प्रॉफिट भी हुआ, बट देन दैट इज अ लर्निंग प्रोसेस. Okay. Yeah. So how we all can contribute towards society, or like for women, like this financial education के बारे में अगर हम बात करते If you're talking about financial education, हैं, then like we all, how can we contribute? I mean, the more you talk, the more you discuss these things. Like also अगर जैसे आपका ये पॉडकास्ट है, हाँ जी. और फिर मेरा भी इंस्टाग्राम और बाकी फेसबुक Like पे at least भी, जिनको भी knowledge है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको share करें. सो हम इस बात पे बातें करते रहते हैं, हाँ जी. और हम अवेयरनेस के लिए इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं. दैट ऑफ कोर्स, एंड ऑफ कोर्स फॉलो द गवर्नमेंट Right. की स्कीम्स हैं, और फिर प्राइवेट जो AMCs हैं, like HDFC, SBI, there are so many, I think about 20 or more.
सो ये सारे भी अपने एडवर्टाइजमेंट वगैरह और शॉर्ट वीडियोस दे कीप ऑन यू नो राइट एंड आई पब्लिसिटी. थिंक वन सजेशन, मेरा पर्सनल सजेशन है एक फॉर ऑडियंस, कि अननेसेसरी वाली ऑडियोज और वीडियोज स्क्रॉल करने की जगह एटलीस्ट ऐसी ऐसी वाली वीडियोज लोग देखें. तो बिकॉज आप कंटिन्यू थोड़ा देखते हो तो वो इंस्टाग्राम या आपको यूट्यूब फिर से खुद से ही देगा और सारी नॉलेजेबल वीडियोज. या अगर आप देखना स्टार्ट करोगे तो वो तो है ही है. तो वो That's how डिपेंड it करता है कि आप works. क्या सेलेक्ट करते हो देखने के लिए भी. तो आई थिंक लोगों को भी थोड़ा सा उनका भी एक है पर्टिकुलर पार्ट कि उनको क्या करना है. जिसको नॉलेज लेनी है तो उनको भी एटलीस्ट ऐसी वाली वीडियोस में देखनी चाहिए. या सो एट व्हाट एज पीपल शुड कनेक्ट, like at how people can connect to you for financial planning, or like how we can connect or anybody can connect to you? I have my social media channel. I just Yeah, we will shared. upload your details. So on our that is the description. best way Yeah. to message me directly, and then Okay. I'll contact them. Okay. And of course, even my email ID is mentioned, so they can send me an email. Okay. So, like the last question, ma'am, like what do you think about women empowerment, or like how we can empower women? Okay, so let's talk about technology and being aware of digital payments, digital assets. आजकल क्रिप्टो करेंसी का भी है काफ़ी. इट इज़ गेनिंग लॉट ऑफ फोकस एंड दैट इज़ अ फ्यूचर. Right. सो क्रिप्टो करेंसी का भी अवेयरनेस, अगर कोई कोर्स कर लें छोटा मोटा, यू नो, जस्ट टू बी अवेयर, हाँ जी. और दैट विल बी गुड. कुछ उसको समझ के पढ़ के फिर उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें. ऑफ कोर्स टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स लाइक मी, Right. वेयर वी कैन एक्चुअली डिवाइड एंड टेल देम किसमें क्या आपको करना चाहिए. एंड देन जितना आप फाइनेंशियली अवेयर और एजुकेशन ले सकें, सो यू मस्ट टेक. और वो women ही नहीं, for men, for Right, young for men. people. This is for everyone, right? It's for everyone. Yeah. I would say even old people in 50s, 60s, there is no end to learning, you know. Right. But finance की education तो सबको ही चाहिए, Yeah. you know. So yeah, ma'am, it was like so good. It was so good to know basics of finance, because normally you know practical knowledge बहुत ज़्यादा available है इंटरनेट पे भी सभी जगह, but बहुत basics नहीं बताएं कि हमें क्यों लेनी चाहिए, क्यों हमें करना चाहिए. So through you at least आज हमें इतनी basic सी चीज़ें पता चली हैं. Thank you so much for coming. Thank you so much for sharing your knowledge and you know inputs. Yeah, so we are so grateful to you, ma'am. It has been a pleasure. Thank you, ma'am. Yeah, it was really So, wonderful. like, please let us know in the comment section your thoughts, like what you think about this podcast, and please just like, share, and subscribe our channel. Thank you so much.